He is a very close friend of mine. Oh, we are just like a family. All these things we say. In the world context also, there have been many types of divisions. I'll just give a reference to a book. First, the very basic difference all over the globe, you must have come across the word. First word, second word and third word. और हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं इंडिया इज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री. व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट वर्ल्ड मीन्स द कम्युनिस्ट, द कैपिटलिस्ट कंट्रीज. पूंजीवादी देशों को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है. कम्युनिस्ट कंट्रीज आर नोन एज द सेकंड वर्ल्ड and rest of the countries are known as the third world. There is another classification: aligned and non-aligned countries. Capitalist is one kind of alignment, एक पक्ष हो गया. Communist another type of alignment, and the other countries who are neither this way or that. For example, India is having a mixed economy, a mixture of capitalistic and socialistic or communistic ideology. We generally say we are a non-aligned country. हम किसी पक्ष में नहीं है. लेकिन ये बहुत अच्छा या सच्चा स्टेटमेंट नहीं है. It's not a very true statement. We are aligned with many countries. Very true. There's another simple classification. There are rich countries and poor countries. अमीर देश है, गरीब देश है. हम सब जानते हैं अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड अमीर देश हैं. और यदि मैं कहूं ज्यादातर अफ्रीकी देश, या हम अपने आसपास ढूंढ लें सिलोन, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, ये गरीब देश हैं. सो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन. सिमिलरली इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन लोगों ने कहा, हम टर्म यूज करते हैं, डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड अनडेवलप्ड करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसके लिए वो कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप्ड विकासशील और विकसित देश. अब सच बात यह है, अब जैसे हम लोगों ने एक नई बात की है, अच्छी बात है वैसे ये, कि भाई हम किसी अंधे को अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते हैं. वी नेवर कॉल्ड ए ब्लाइंड, वी कॉल हिम सूरदास. सो सिमिलरली द अनडेवलप्ड कंट्रीज वी हैव कॉइन्ड द टर्म विच इज लेस डेरोगेटरी, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश हैं. सिमिलरली देयर आर अदर यूनियंस. यूरोपियन यूनियन, पिछले करीब 20 सालों से यूरोपियन यूनियन इज हैविंग वन करेंसी, दे आर हैविंग वन गवर्नमेंट, they are having one common president. European Union, NATO is still a group. Similarly, recently we had ASEAN countries. ASEAN, you know, ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia. So these are ASEAN countries. Then there are different classifications: Eastern countries, Western countries. In generally we say Southeast, even East, we have many divisions: Southeast countries, Middle East countries, Southeast Asian countries. So a kind of a group and a subgroup and major group. Then we had, in fact, the very thing started, सारी चीज शुरू हुई G5 से. We had G5. Brazil, China, Mexico, India, and South Africa. Then we had G8: America, European Union, Canada, France, Germany, UK, Japan, Italy, Russia. Then we had BRICS countries. ये सारे देखिए गुटबंदी हैं, ग्रुप्स हैं, मे बी फॉर द गुड कॉज, अच्छी बात के लिए हैं.
BRICS, we had Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Then we had recently, we are having for last 10 years, Quad countries, Australia, India, Japan, and USA. And in the last now, G20. And on today's date, we are G21 countries. I will quickly list the G21 countries from two continents, North America and South America. We have 5 countries: USA, Argentina, Brazil, Canada, and Mexico. Then from Australia, we have one Australia. Then from Africa, we were having South Africa. Now we are having African Union also. African Union, let me tell you, friends, basically it is a union of 55 countries altogether, but 6 of them are major countries: Sudan, Comoros, Chad, Niger, Somalia, Central African Republic, and Western Sahara. मेरा सारा ये कहने का मतलब, खैर इसमें अभी हम ये कहने का मतलब है, अच्छा अभी और बचा यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, यूके, एंड यूरोपियन यूनियन एंड रशिया. रशिया एशिया और अफ्रीका दोनों में आता है, इसलिए यूरेशिया का भी हिस्सा कहलाता है. सो फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया, ये यहां से हो गए. और एशिया से हमारे पास हैं इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड सऊदी अरबिया. ऐसा डाटा कहता है वर्ल्ड का 76% जीडीपी ये सारे 20 कंट्रीज मिलकर कर रहे थे. यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. 1931 इंडिया और चाइना सारी दुनिया का 62% जीडीपी रखते थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओनली चाइना एंड इंडिया वर हैविंग द हाईएस्ट कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी. बदला है, बहुत बदलाव हुआ है. आज अमेरिका हाईएस्ट जीडीपी वाला है, ये बात सच है. सारी बातों का लब्बो लुभाव ये है, द अल्टीमेट थिंग इज दुनिया को किस नजरिए से देखें. सो दिस इज वन एंगल that G20 or now G21 countries have come. In fact, it's a misnomer to say G20. In fact, it is a union of more than 80-90 countries now. More than 90 countries. क्योंकि 25-27 तो यूरोपियन यूनियन वाले ही हो गए और 55 यही हो गए. इसमें एक और क्लासिफिकेशन की ओर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा. There's a book only 5 year old. I'll refer to this book. Factfulness. इस किताब की बड़ी शानदार कहानी है. रोजलिंग साहब ने लिखी है ये. रोजलिंग साहब की डेथ हो गई थी तो उनकी बहू ने प्रकाशित की थी. बड़ी लंबी कहानी है, तो हम कहानी में नहीं पढ़ेंगे. The only thing he gave just 5 years back, it's a 2018 publication, just 5 years back, he gave a wonderful classification of the whole world. वो कहता है कि यदि सारी दुनिया को डिवाइड करें तो कहता है एक्स एक्सिस को यदि हम डिवाइड करें इनकम से, लोवेस्ट इनकम एंड हाईएस्ट इनकम वाले कंट्रीज, द कंट्रीज विद द एवरेज लोवेस्ट इनकम एंड हाईएस्ट इनकम. सिमिलरली एज, एवरेज एज ऑफ ए कंट्री, लोवेस्ट एज एंड द हाईएस्ट एज. तो नेचुरली ये वाला हिस्सा वो हो जाएगा जो हाईएस्ट इनकम है और हाईएस्ट एज है, और ये वाला हिस्सा होगा जो लोवेस्ट इनकम है और लोवेस्ट एज है. मैं लोवेस्ट वाले बता देता हूं पहले कंट्रीज को. सोमालिया, बरुंडी, नाइजर, मालवी, अफगानिस्तान एंड मेनी.
मैं यहाँ मजे की बात जो बताना चाहता हूं, मैं इस किताब का रेफरेंस क्यों ले रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य है। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। हम लोग समझते हैं अमेरिका बहुत महान देश है, ऐसा नहीं है। ये जो टॉप कंट्रीज हैं, पहले 10 में भी अमेरिका का नाम नहीं है। मैं लिस्ट बताता हूं। वो है सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कतार। आप देखिए, कल्पना नहीं कर सकते, कतार, कतार, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, कुवैत, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, यूके, बेल्जियम, साउथ कोरिया, और यहाँ काफी ज्यादा नीचे जाकर 10वें के भी बाद आता है अमेरिका, बहुत बाद में आता है। तो यदि हम एक वर्ल्ड की ग्रोथ का, कि जहां इनकम भी ज्यादा है और एज भी ज्यादा है, तो हमारे आइडियल कंट्रीज यहाँ ये जो लोग हैं, और अमेरिका यहाँ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल पहले का डाटा, 2 साल में बहुत बदलाव हुआ है। हम इंडिया का नंबर 70वां है। दिस इज इंडिया, 70वां नंबर है। और हम लोग अपने आप को वो समझते हैं, पाकिस्तान मुश्किल से 77 नंबर पर है, हार्डली एट 77, बहुत पीछे नहीं था। अब जरूर कुछ फर्क पड़ा है पिछले 2 साल के अंदर। खैर, मैं कुल ये बताना चाहता हूं, द अल्टीमेट एसेंस ऑफ ऑल दिस इज ए कंट्री, रोजलिंग हैज ऑल्सो रेज द सेम फैक्ट। एक कंट्री का अल्टीमेट डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि जीडीपी तो ठीक है, इनकम ठीक है, एज भी ठीक है, वहां की एजुकेशन कैसी है। यहां मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। दुनिया भर में आज भी हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज अमेरिका ले जाता है। वो बात अलग है, जर्मनी से आया हो या फ्रांस से आया हो, बट अमेरिकन दे बैग द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज। इंडिया से ना के बराबर नोबेल प्राइज आते हैं। दुनिया के फर्स्ट, कहना चाहिए मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आज। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड येट वी आर लैगिंग बिहाइंड इन गेटिंग नोबेल प्राइजेस। एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्राइवेट और पब्लिक का रोना रोते रहते हैं। मैं आपको एक फैक्ट दूं, the best of the American universities are private universities, not public or the government universities. Another fact I will tell you, maximum Nobel Prizes in America are won by the private university teachers, not government teachers, university teachers. These are interesting facts. खैर, मैं बातों पर आता हूं। असली बात जो है कि दूसरा पक्ष यहां एनईपी 2020 का मैं लाना चाहूंगा। Yesterday I had given a brief reference to NEP 2020. दोस्तों, I tell you NEP 2020, of course हर चीज पूरी नहीं होती, इसमें भी कमियां हैं, बट आई वुड से, क्योंकि मैं सारी उम्र बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहा हूं। एक वाइस चांसलर साहब ने तो मेरा नाम दुर्वासा रख दिया था। आई टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंडियन एजुकेशन में की हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंट इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री में, कोठारी कमीशन के बाद यदि कोई ढंग का अच्छा शानदार होलिस्टिक डॉक्यूमेंट आया है तो वो एनईपी 2020 है। एनईपी 2020 मैंने कल भी बताया था, मैं फिर रेफरेंस दूंगा। ये गुरुकुल की भी बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करता है, और ट्रेडिशनलिटी की भी बात करता है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की भी बात करता है, इंडियन वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की भी बात करता है, दे हैव बीन एबल, अफेक्टिव डोमेन के डेवलपमेंट की भी बात करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन
बेस्ट एजुकेशन के लिए अब एक नया डायमेंशन आ रही है. Those countries and those institutions are the best which have a wonderful, say, synchronization of cognitive, cognitive and affective abilities. मैं बात को बाद में भी करूंगा. ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक चीजों का जो समन्वय अच्छा कर पाता है, उसी कंट्री की एजुकेशन अच्छी हो पाती है. यहां मैं फिर रेफरेंस दूंगा. अभी तक इंडियन एजुकेशन का जो रास्ता था 2020 से पहले, वो कॉग्निटिव बहुत ज्यादा था. इसीलिए इसको बैलेंसिंग करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है. एंड इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ डूइंग, यूरोप, अमेरिका और रशिया तक कह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग ए वंडरफुल वर्क इन द फॉर्म ऑफ स्किल इंटीग्रेशन विद द कॉग्निटिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन में अभी भी हम पीछे हैं. हालांकि बात की गई है, एनईपी 2020 में बहुत बात की गई है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. खैर, मैं तो ये बता रहा हूं कि लेसन्स वी कैन हैव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो मैं अगली अब बात अपनी 3-4 बात हिस्सों में करूंगा. पहले मैं एक जस्ट 10 मिनट के लिए ग्लिम्प्सेस बताऊंगा कि हम क्या थे, क्या हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या लेसन्स ले सकते हैं. मैं क्विकली कहूं, इंडिया हैड ए वंडरफुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो दुनिया में कहीं नहीं था. इट वाज द मोस्ट यूनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन वी हैड, और वो था गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ बात करूंगा, बिकॉज क्योंकि वो आज भी रेलेवेंट है. गुरुकुल की बात हमारे एनडीपी 2020 में भी कही गई है. दोस्तों, एट द इंडियन गुरुकुल एट वन टाइम वी वर हैविंग 5 महाआचार्यास. महाआचार्यास रामदास गौड़ की किताब है, उपनिषदों की शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारतीय, उसमें रेफरेंस आता है. वी हैड 5 महाआचार्यास. महाआचार्य उसे कहा जाता है, महाआचार्य इज वन. दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी आज एक भी महाआचार्य नहीं है सारी दुनिया में. इवन अमेरिकन और द बेस्ट नोबेल प्राइज विनर्स यूनिवर्सिटीज को एक जगह भी महाआचार्य नहीं है. नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटी इज हैविंग महाआचार्य. महाआचार्य इज द वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी which has got the resources for boarding, lodging and education of 10,000 students for 12 years continuously. महाआचार्य उसे कहा जाता था जो 10,000 छात्रों को 12 साल तक रहने, खाने, चिकित्सा सब कुछ के अलावा पढ़ाने की 12 साल तक की, 10,000 छात्र 12 साल तक लगातार पढ़ाने की क्षमता रखता है. ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में ऐसी नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस नहीं है कि जो 12 साल तक खिला पिला सके बच्चों को. 1. सेकेंडली, कुछ यूनिवर्सिटी, सभी नहीं थे इंडिया में, कुछ गुरुकुल ऐसे थे. हम लोग समझते हैं, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट गुरुकुल वाज ए प्राइमरी सिस्टम और ए स्कूल सिस्टम. नो, वेरी रॉन्ग सर. कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे, गुरुकुल ऐसे थे, जहां 12 साल की शिक्षा नहीं, 24 साल की शिक्षा होती थी. 24 ईयर एजुकेशन. There were some gurukuls we were having 36 years of education, and there were certain gurukuls which had the provision for 48 years of continuous education. You will find Google में डालिए, रेफरेंस मिल जाएगा. One more thing which proves that they were the institutions of complete holistic learning starting from pre-primary to primary. 12 साल की उम्र में बच्चा एंटर करता था और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 विषय पढ़ाए जाते थे. There were minimum 15, 18 subjects which were taught. Not a single university all over the world today is teaching 15 subjects. 15 छोड़िए, 10 छोड़िए, 5 भी नहीं पढ़ाते ग्रेजुएशन में. ये एक बड़ी यूनिक चीज थी. वेद, वेदांग, वृक्षायुर्वेद, धनुर्वेद, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मगध विद्या, सर्प विद्या, चर्म विद्या, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और पता नहीं क्या क्या, ये सब पढ़ाए जाते थे. एक और खास बात, वी वर हैविंग ए वंडरफुल टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप.
यहां मैं एक ही रेफरेंस देना चाहूंगा, आप पाएंगे दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। हमारे जो गुरुकुल थे, एक ही मतलब मैं कहूं, आज भी सारे देश के जितने भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं इन इंडिया में, वाइस चांसलर के रेसिडेंस के ठीक बगल में गेस्ट हाउस रहता है। दिस डिजाइन एंशियंट इंडियन एजुकेशन बाई राधा कुमुद मुखर्जी, बहुत मोटी किताब है, उसमें क्लियर रेफरेंस है और डिजाइन बना हुआ है। कुलपति के निवास के एक और गेस्ट हाउस था, दूसरी ओर रुग्णालय था, चिकित्सालय था, और उसके बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स थे, और बीच बीच में टीचर्स के रेसिडेंसीज थे। दिस डिजाइन वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर कल्चरल हेरिटेज। एक और रेफरेंस मैं दूंगा, लास्ट रेफरेंस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ब्रिटलैंड कमेटी 1987 में यूएनओ ने बनाई थी एजुकेशन के बारे में, एंड दे वर डिट्टो कोटिंग ऋग्वेदास, ऋग्वेदों को ही कोट कर रहे थे। प्रेजेंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन आप पाएंगे एनईपी 2020 में भी हम लोगों ने बड़ा दुख की बात प्रकट की है कि आज भी हमारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। 200 यूनिवर्सिटीज में से वी आर नॉट हैविंग नॉट ए सिंगल यूनिवर्सिटीज अंडर आईआईटी आईआईएम को मैं यूनिवर्सिटी मानने से इनकार करूंगा, तो ठीक है यूनिवर्सिटी है, बट आई वांट टू टॉक लाइक कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जौनपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज की बात करें ना। आईआईएम और वो तो बड़े अमीर तरह से बड़े साधन संसाधन युक्त यूनिवर्सिटीज हैं। सो नॉट ए सिंगल इंडियन यूनिवर्सिटी इज देयर इन द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। अब करें क्या, क्या किया जाए, फिर मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। देखिए, नालंदा और तक्षशिला के बारे में आप कह रहे हैं बताऊं, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, एक ही उदाहरण है। तो विषय से थोड़ा अलग हट जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि प्राचीनता के बारे में, मैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं। एडमिशन का तरीका बताता हूं सिर्फ। नालंदा में 3 गेट होते थे। एक आदमी जो भी छात्र दाखिला लेना चाहता है, पहले गेट पर द्वारपाल सवाल पूछेगा उनसे, खूब पूछेगा, हो सकता है एक दिन तक सारे दिन पूछता रहे। पास हो गया दूसरे गेट पर, फेल हो गया साल भर बाद आना पहले गेट पर, दूसरा गेट पर मान लो पास कर लिया, दूसरे गेट पर पहुंचा, फिर वो सवाल पूछेगा द्वारपाल, फेल हो गए 1 साल बाद पहले गेट पर आना, तीसरे गेट पर पहुंच गए फिर सवाल पूछेगा, फेल हो गए 1 साल बाद पहले गेट पर आना। दिस वाज ए टफ कंडीशन फॉर एडमिशन में। और केवल एक ही तथ्य और बताऊं, बताते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने वहां आग लगाई थी तो 6 महीने तक नालंदा की विश्व लाइब्रेरी जलती रही थी। ऐसा आप गूगल में देख लीजिए, मिल जाएगा। मैं क्विकली दूसरी बातों पर आता हूं। 7 में एनईपी 2020 जो ये कंट्रीज हैं, G20 G21 के हैं, 76% जीडीपी इन सब चीजों को कहें, यदि हम एक अच्छा इंडियन एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहें तो सारी दुनिया से क्या सीख ले सकते हैं। दोस्तों, मैं एक पर्सनल क्रिटिकल कमेंट करना चाहता हूं। आई एम सॉरी, आई लाइक टू मेक ए क्रिटिकल कमेंट। मैंने जैसे बताया, एक तो यह है कि कहने को G21 है, 90 से ज्यादा है। दूसरा मैं बताता हूं विद ऑल ऑनेस्टी, सबका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है। मुश्किल से 15-20 ही कंट्री है, वो कहने उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मैं कहूंगा, मैं जापान के सिस्टम को एजुकेशन का अच्छा करना नहीं मानूंगा। हालांकि कुछ अच्छे हैं, वहां से नोबेल प्राइज मिलते हैं, अच्छे नोबेल प्राइज मिले, लेकिन ये भी जाने कि सुसाइड रेट जापानीज स्टूडेंट का वर्ल्ड का हाईएस्ट सुसाइड रेट है। सो आई विल नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट जापानीज एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। मैं जो एक डाटा आपको देना चाहूंगा वो मोटे तौर पर हम इधर से चले,
ऑस्ट्रेलिया, जापान भी ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, और फिर हम सीधे आ जाते हैं सारा यूरोप, ज्यादातर यूरोप, और फिर हम आ जाते हैं ऊपर ब्रिटेन, और फिर हम आते हैं अमेरिका। इन कंट्रीज में आप पाएंगे ज्यादातर नोबेल प्राइज ये लोग ले जाते हैं। आज यहाँ की शिक्षा अतुलनीय है, बहुत अच्छी है, और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैं एक नोट ऑफ कॉशन देना चाहूंगा, आई लाइक टू गिव ए नोट ऑफ कॉशन। इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंडियन इथॉस, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। ठीक इसी तरह से यदि बेस्ट कंट्री हम ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को भी ले लें, तो ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ बेस्ट है, पर वहां कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें सीखने के लिए मौका देती हैं। तो मैं उन अच्छी चीजों को लाना चाहूंगा। मैं खराब चीजों दूंगा जरूर, बताऊंगा जरूर, लेकिन आई विल नॉट से दैट वी हैव टू एमुलेट ऑल दोज थिंग्स। दे कैन नॉट बी एमुलेटेड, दे शुड नॉट बी एमुलेटेड। मेरे सोर्सेज क्या है, मैं पहले ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं चूंकि एजुकेशन का छात्र हूं, आई एम स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, आई एम सब आई हैव डन माय बीएड, एमएड, एमफिल एंड पीएचडी इन एजुकेशन। इस वजह से हमें वी रीड इन कंपैरेटिव एजुकेशन, हमारी एमएड में पढ़ाती थी हमारे टीचर्स, घाना की एजुकेशन कैसी है, फिलीपाइंस की कैसी है, अमेरिका यूरोप की कैसी है, वो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम लोग एक तो एज ए कोर्स हम लोगों ने पढ़ी थी। दूसरा, विद ऑल हम्बलनेस, पूरी विनयशीलता के साथ मैंने कहना चाहूंगा कि ये मेरा अमेरिका का 12वां टूर है। इट इज ए 12th टूर। For the first time in 2007, I had visited America on an official visit from Lucknow University for a Memorandum of Understanding (MOU) with California State University, Long Beach. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 23 ब्रांच है इनकी, और लॉस एंजलिस मेन ब्रांच थी। लॉस एंजलिस से 23 मील दूर लॉन्ग बीच नाम का शहर है, उनके साथ हम एमओयू डेवलप करने 2 बार गए थे। मैं 10 बार और आया, और हर बार 4 महीने 6 महीने रहता ही हूं अपने निजी कारणों से। इसी बीच में मैंने मिनियापोलिस यूनिवर्सिटी में, कहना चाहिए मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए, टेक्सास यूनिवर्सिटीज में भी मैंने लेक्चर दिया, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए, डेनबरी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, पीएचडी का एग्जामिनर बनने का मुझे मौका मिला एक इवेल्युएशन में। ये मेरे अनुभव हैं। यूरोप में करीब महीने भर घूमने गया था, 14 कंट्रीज में यूरोप में घूमा था। ये प्लस मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। एक प्रोफेसर मैथ्यू स्वार्डलॉफ हैं, प्रोफेसर एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन डेनबरी यूनिवर्सिटी। उनकी पत्नी मैडम, वो सनी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में हिंदी की, वो अपना एजुकेशन की प्रोफेसर हैं, और वहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मैडम गावरी परमेश्वरन। प्लस मेरे एक और अच्छे दोस्त बने हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी एट ऑस्टिन में, प्रोफेसर स्टीफन फिलिप्स। मैथ्यू साहब के घर पर मैं हफ्ते भर रहा था, उनसे 100 सवाल पूछता था। आई यूज्ड टू आस्क hundreds of, almost 50 questions every day. Every day we used to move in the morning and come back in the evening. We went to at least 10 schools. We went to 3 universities. And on the basis of those experiences, I am telling about education and the culture. दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप गूगल में डालें विच एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट, आपको हैरानी होगी। अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, यूरोप नहीं है। यूरोप का एक छोटा सा मरियल सा कंट्री है जिसने सारी दुनिया पर, सारी भारत में, सारी दुनिया में राज किया था, जिसके एक मोबाइल ने। बिल्कुल मरियल कंट्री है। लखनऊ और कानपुर मिला दे तो शायद फिनलैंड से बड़ा होगा। फिनलैंड उत्तर आता है। विच एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट? इट इज द फिनलैंड। फिनलैंड से आपका मोबाइल बना था नोकिया। सारे देश में नोकिया मोबाइल की मैं एक ही क्वालिफिकेशन बताया करता हूं कि आप 5 बार जमीन पर पटक दे तब भी टूटता नहीं था। बट दे कुड नॉट मूव विद द टेक्नोलॉजी,
आज सारी दुनिया में या तो सैमसंग चलता है या फिर आईफोन वो चलता है। खैर मैं उस चक्कर में नहीं जाऊंगा। मैं फिनलैंड की बात करूंगा विशेष रूप से। दूसरी में 2 बार मुझे जाने का मौका मिला। एक मरियल सा देश है, बिल्कुल मरियल सा, और गरीब देश भी है, लेकिन वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा पड़ोसी देश है, और हमारा वहां वीजा भी नहीं लगता। मैं तो फ्री गया था, कोई वीजा नहीं था। अब जरूर वहां आप 5 दिन रहेंगे तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, अब नई फीस लग गई है। बिल्कुल मरियल सा छोटा सा कंट्री है। 2012 में उसको सेकंड हाईएस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स माना गया था उनका, भूटान। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो टू भोपाल, भूटान। दोस्तों, आप अलीगढ़ से पटना यदि 5 दिन रहें, जो खर्चा होगा उसी खर्चे में आप भूटान में 5 दिन रह सकते हैं। सेम एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्चा नहीं है। अब थोड़ा बढ़ गया वो 5,000 दिन के अलावा 5,000, 5 दिन रहेंगे तो 5,000 और ज्यादा देने पड़ेंगे। आई वुड अर्ज यू, ईच वन ऑफ यू, टू गो टू भूटान एटलीस्ट वंस। क्यों, मैं बताना चाहूंगा। सो फर्स्ट इज दिस, मैंने कौन सा बताया था, फिनलैंड। सेकेंड इज भूटान, आई विल टॉक टू। एंड थर्ड, इन जनरल, आई विल टॉक अबाउट यूरोप, ब्रिटेन एंड अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इनसे हमें मोटे तौर पर क्या मिल सकता है, मैं इनकी बात करूंगा। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। यूरोप के 4-5 कंट्री ऐसे हैं जो केवल एजुकेशन या ये नहीं चलेगा, हैप्पीनेस नहीं चलेगा, और बहुत सी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट देम। दोस्तों, 3 कंट्रीज जाने जाते हैं। 3 कंट्री का एक कंबाइंड नाम है, कंबाइंड नेम है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। मैं बार बार कहूंगा, हम लोग जो बार बार समझ रहे हैं कि अमेरिका महान है, अमेरिका महानतम है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे इंडेक्सेस पर अमेरिका नहीं आ पाता, खरा नहीं उतर पाता। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। आई रिपीट, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, और इसमें 2 और जोड़ लें, स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। मैं फ्रांस, इटली, जर्मनी नहीं जोड़ रहा हूं। ये 5 कंट्रीज, ह्यूमन डिग्निटी इंडेक्स इनका हाईएस्ट है, ऑनेस्टी इंडेक्स हाईएस्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हाईएस्ट है, क्राइम रेट लोवेस्ट है इन 5 कंट्रीज का। और यहाँ 5 कंट्रीज में एक कहना चाहिए इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब सबसे ऊंचे दर्जे है। तो यदि मैं अपनी भाषा में कहना चाहूं तो these 5 countries, by and large, they constitute heaven of the world if it is existing in present situation, except for one personal factor. सच बात यह है कि मैं रिटायरमेंट के बाद नॉर्वे में या फिनलैंड में रहने की सोची थी कि मैं परमानेंट वहीं बस जाऊंगा, लेकिन मैंने पाया कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, इट इज टू मच ऑफ कोल्ड। तो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है इन 5 कंट्रीज का। अदरवाइज दीज 5 कंट्रीज आर जेम ऑफ द कंट्रीज। ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ह्यूमन डिग्निटी इंडेक्स, ओपननेस, क्राइम रेट लोवेस्ट, एंड ऑल दीज फैक्टर्स दे कंस्टिट्यूट के वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अच्छी है। तो मैं इनकी भी कंबाइंड बात और करूंगा। So now we should begin the very lesson. One more factor, basic factor, which is common to all of them. Sorry, उससे पहले एक चीज और बता दूं. One more thing I should tell you. All over the world, क्योंकि मैं जैसे बताया कि यहाँ 12वीं बार आया और मेरे बच्चे वगैरह मुझे
मैक्सिकन खाना खिलाते हैं, थाई खाना खिलाते हैं, चाइनीज खाना भी हम खाते हैं। वेज खाता हूँ, स्ट्रिक्टली वेज। फिर हमें वो बताते हैं कि जी ये साउथ एशियन या मिडिल ईस्ट की डिश है, ये है, वो है, ये है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सारी दुनिया को एक बिंदु पर द चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग बाय द पेरेंट्स और बाय द सोसाइटी एट लार्ज दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वन who have very strong emotional, economic, social and cultural affiliation with their kids। ये बड़ा गहरा मुद्दा है, अच्छी बातें भी है, खराब बातें भी है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं पहले अच्छा उनका बताता हूं। मैं उधर से ही एग्जांपल लेता हूं दोबारा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ले लीजिए आप सीधा, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, होल ऑफ यूरोप, होल ऑफ ब्रिटेन एंड अमेरिका एंड काफी बड़ा हिस्सा साउथ अमेरिका का। बच्चा माँ बाप के साथ 18 साल तक रहता है। द चाइल्ड लिव्स विद हिज पेरेंट्स अप टू 18 years, whether it is a boy or a girl। माँ बाप भी जानते हैं 18 साल के बाद ये बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, दूर चला जाएगा। जब मैं पहली बार अमेरिका आया तो मैं हैरान रह गया। हमारे वहां एक टीचर का बच्चा हमारे साथ डिनर पार्टी में था। ही वाज सेइंग, आई विल बी ए फ्री बर्ड नेक्स्ट ईयर, आई विल बी ए फ्री बर्ड। व्हाट डज इट मीन? आई विल नॉट लिव विद माय पेरेंट्स, आई विल लिव माय ओन लाइफ। सो जो पेरेंटल रेस्ट्रिक्शंस हैं या डिसिप्लिन है या एनवायरमेंट है या मेरा घर है तो मेरी तरह से रहना पड़ेगा, बच्चा कह देता है ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है, वो वहां 18 साल तक रहता है। 18 साल के बाद माँ बाप का बच्चे पर कोई जोर नहीं रहता। बाय एंड लार्ज उसको वोटिंग राइट भी मिल जाते हैं। द पेरेंट्स आर अनेबल और सिंपली cannot control their children after 18 years of age in these countries. They are out of the bounds. उसके बाद बाय एंड लार्ज मैक्सिमम केस में साल में एक बार कम से कम आएगा, क्रिसमस के टाइम पर पेरेंट्स से मिलने जरूर आएगा। बाकी मिलने आए जरूरी नहीं है, अलग रहने लग जाएगा। अब यहाँ एजुकेशन और हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन का बहुत बड़ा इंप्लीकेशन इस पर आ जाती है। मैं पहले सब बताना चाहूंगा। सपोज दैट फेलो हु सेड आई विल बी ए फ्री बर्ड नेक्स्ट ईयर, वो जानता है कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 1 महीने 2 महीने बाद आई विल गो आउट ऑफ दिस हाउस। व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे खाने को चाहिए, रहने को चाहिए, कम से कम 2 बेसिक नीड है। कपड़े तो मैं माँ बाप ने जो बना रखे दे दिए वो ले आया मैं। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, फाइन, बट एटलीस्ट 2 things I will need. I will need food to eat, I will need a house to live in, and I will need money for both of them. ये 3 बेसिक नेसेसिटीज हो जाती हैं। इसलिए उसकी पहली चिंता इन सारे कंट्रीज में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की नहीं है, कॉलेज एजुकेशन की नहीं है, आगे पढ़ने की नहीं है। पहली चिंता उसकी रोटी कपड़ा मकान की हो जाती है। कल्चरली बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी अपनी कमियां भी हैं, मैं आऊंगा, आई विल कम बैक। मैं हल्का सा कंपेयर करना चाहूंगा इंडियन सिस्टम ऑफ से। इंडिया में मैं पर्सनल एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा। इंडिया में हम ये सोचते हैं कि हमने बड़ा एहसान किया है और सारी उम्र बच्चा पैदा नौकरी करने के बाद सारी उम्र हमारे एहसान उतारता रहे, हमारी सेवा करे, हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ जाए, साथ रहे। एक बात उल्टा भी है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता। मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन रहे हैं, रिटायर हुए इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से। वो खुद कहते थे कि मैं एमए तक अपने पिताजी के साथ सोता था। I was not emotionally developed enough to have my own individuality. I was
sleeping with my father. ठीक इसी तरह से आज इंडिया में बच्चा कहता है तूने कर लिया, बीए कर लिया, दुनिया का मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ नहीं कर सकता बीए कर ले. If you cannot do anything, okay, do BA, do graduation. After graduation, if you have not been able to do anything, do PG. After PG, if you have not been able to do anything, we will support you. Don't worry, we are there. डरने की क्या बात है, हम तुझे है ना, हम तेरे पीछे, हम तेरे साथ हैं. PhD कर. There was a comment by a top UGC expert 8 years back, probably exactly 8 or 6, 7 years back, that hardly 15% of the PhD Indian universities are producing are worth employing. भारत में हम जितने पीएचडी पैदा कर रहे हैं मुश्किल से 15% ही एम्प्लॉयबल है, बाकी सब कबाड़ है और ऑल इज ट्रैश. दैट्स ए क्वाइट ए not if not directly quite an insulting comment on Indian education system. उसका एक हमारी दिक्कत यह है कि we over protect the people. मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा. गोरखपुर के मेरे एक परिचित सर के बेटे हैं, प्राइवेट कॉलेज में कहीं पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं. वो जब मेरे घर आए थे, उनके पिताजी एग्जामिनेशन लेने आए थे और उन्हीं के साथ आ गए थे. वो डीन थे, उनके पिताजी किसी टॉप यूनिवर्सिटी में डीन थे, और वो 5 मिनट खड़े होकर नहीं बोल पा रहा था. उसने बीएड कर लिया था, एमए कर लिया था, बीएड कर लिया था, एमएड कर लिया था, पीएचडी कर ली थी, और वो कहते मैं इसको लगाने आया हूं, बशीर जी कहीं इसको हो तो लगा देना इसको कहीं. बच्चा डेवलप ही नहीं हो पाता, इमोशनल डेवलप नहीं होता. मैं दोनों कंडीशंस को रख रहा हूं. देयर द चाइल्ड in these western countries or the developed countries or the countries which I have named, the child sense of self responsibility comes after 18 years. He has to make his life for in his own way. और हमारे यहाँ he is not at all emotionally developed to go ahead. मैं और किसको क्या कहूँ, गांव में मेरा भतीजा 31 साल का हो गया है, बीए का भी अभी एक पेपर बाकी है, घर में है, खाने पीने को है, सब ठीक है, कुछ नहीं करता. 50 बार कहा है कुछ खा कमा ले, खेती भी नहीं करता, 50-55 बीघा खेती है उसके हिस्से में. दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडियन सिस्टम कल्चर. अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है. मैं बार बार कहूंगा, वहां जो एक बच्चा पेरेंट्स से संबंध नहीं रखता, साल में एक बार मुश्किल से आता है, वो भी अच्छा नहीं है. और हम जो अपनी छाती से चिपका के रखते हैं बच्चे को, ये भी अच्छी बात नहीं है. वी हैव टू फाइंड ए मिडिल वे, and that is a fact which I would like to share with you. This has got great implications for education. How? I tell you. In these countries, whether it is Britain or France or Germany or Europe or Australia, कहता है कि सबसे पहली चीज जॉब ढूंढता है बच्चा. 12वीं करने के बाद 18 साल का हो गया, माँ बाप के घर से आ गया, he will search for a job and he want any job so that I can earn my bread. तो होटल में काम कर लेगा, रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, बैरे का काम कर लेगा, he will do any kind of work. वर्क करने के बाद वो फिर शादी करता है और फिर एजुकेशन की सोचता है. बट दिस इज नॉट सो विद अ ब्रिलियंट चाइल्ड. ये एवरेज है, एवरेज इसकी बात कर रहा हूं मैं, एवरेज ब्रिटिशर और एवरेज जर्मन और ब्रिटेन और व्हाट एवर इट इज. व्हाट एवरेज जो व्यक्ति है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो टैलेंटेड है, अब उसकी कहानी सुनिए. टैलेंटेड बच्चे के लिए हर यूनिवर्सिटी में प्रोविजन है, वी विल गिव यू स्कॉलरशिप, वी विल गिव यू फ्री शिप, और इतना ज्यादा दे देते हैं कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का क्लर्क से भी बढ़िया जिंदगी जी लेता है. फ्री हाउस देंगे, स्कॉलरशिप देंगे और पैसा देंगे. शादी हो गई है तो पत्नी का भी अलाउंस देंगे और कहेंगे बेटा फ्री शिप है, पूरी फ्री माफ है, पढ़ तू, हम देंगे. टॉप कर रहा है ना तू, पढ़, कोई चिंता नहीं है.
इतना इंटेलिजेंट नहीं है, थोड़ा है तो कहे हम तेरी आधी फीस माफ कर देंगे, डोंट वरी। और थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, हम तेरी 20% 25% फीस माफ कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, स्टडी इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, डोंट वरी, देयर इज अ बैंक लोन, यू विल हैव टू गिव गारंटी। और आपका एक जो सिक्योरिटी कार्ड होता है, तो मैं लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा। यू हैव टू टेक द लोन, यू हैव टू पे इट, यू हैव टू वर्क इट। और सच बात यह है वो काम भी करता है। एक बड़ा गहरा सवाल है, अगली बात है मैं शेयर करूंगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका हियर आर हैविंग द सेम कोर्सेज टॉट एवरी डे 3 times। सुबह 8 बजे कक्षा लगती है, 12 या 1 बजे भी कक्षा लगती है, और शाम को 4-5 बजे भी कक्षा लगती है। सेम कोर्स, बीए फर्स्ट, मान लो मैं बीए अभी नाम नहीं, वो ग्रेजुएशन कहते हैं, वो अगली बात है, मैं अगली बात पे आता हूं। और वो बच्चा शाम को नौकरी कर रहा है तो सुबह पढ़ ले, सुबह लेट करके आ रहा है तो दोपहर को पढ़ ले, सुबह नौकरी कर रहा है तो शाम को पढ़ ले, देयर इज प्रोविजन फॉर यू। और हर यूनिवर्सिटीज में आप विश्वास मानिए, सौयों कई बार हजारों जॉब्स होती हैं जो बच्चों के लिए खाली हैं। इतना है कि उसमें बड़े मजे से बच्चा अपना गुजारा कर लेता है, रह लेता है। $15 पर आवर मिलता है, 8 घंटे भी काम किया, 15 8 120, $100 भी काम किया, 25 दिन भी काम किया, $2500 आ गए। इन अमेरिका में एक व्यक्ति $1000 में मजे से अकेला रह के खा सकता है, रह सकता है, कमरा किराए पर भी ले लेगा, हैंड टू माउथ रहेगा, जमा नहीं करा पाएगा लेकिन रह लेगा। $2500 मिले, 1000 खर्च हो गए, 1500 में लोन दे देगा बैंक का, कोई चिंता नहीं है। इसमें एक और बात है पेरेंट्स की, पेरेंट्स कह देंगे तू बैंक से नहीं, हमें तुझे लोन दे देंगे। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, वी विल गिव यू द लोन, बट स्टैम्प पेपर पर लिखेंगे बेटे यू विल हैव टू रिटर्न इट, और रिटर्न करते हैं ईमानदारी से। सिमिलरली इंडियन पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल इंडियन एंड चाइनीज पेरेंट्स और एशियन पेरेंट्स इन अमेरिका, they also are ready to pay for the education of their children। ये एक बड़ी अच्छी बात है, फैमिली एफिलिएशन स्ट्रांग है। और एक और खास बात है जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यू विल बी सरप्राइज्ड, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई शुड टेल यू। मुझे लगता है मैं ज्यादा तेजी से, मुझे और तेजी से बनाना चाहिए क्योंकि बातों में मैं लग जाता हूँ। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर एंड आई एम अपनी रॉ में बहता जाता हूँ, बहुत बातें करनी है अभी आपसे। The cost of house in America depends on the quality of school in the nearby locality। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और मजे की बात है, इंडियन चिल्ड्रन आर डूइंग द बेस्ट इन ऑल अमेरिकन स्कूल्स, इंडियन एंड चाइनीज, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल। तो जहां इंडियन बच्चे रहते हैं, इंडियन लोकेलिटी है, उनका स्कूल अपने आप ए ग्रेड है। उन्होंने स्कूलिंग की ग्रेडिंग कर रखी है ABCD। डी ग्रेड स्कूल वो है जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। वो उनको कहते हैं 2 साल में या तो बंद कर दो, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट, 2 साल में या तो बंद कर दो या C ग्रेड में आ जाओ। C में जैसे ही आए वो कहते हैं विद इन 2 years either get a B status or close, then B they again say either come to A or close, then there is a strict scrutiny of A, you have to maintain A continuously। So as a matter of fact, the excellent schools in America are those who are continuously having A grade continuously for years and years and years, they are known as excellent school। ब्लैकबेरी हमारे पड़ोस में स्कूल है, which is one of the best school in this locality, again for the reason that many Indians are here in this locality, lot many Indians are coming to this school, they are top schools। जितना अच्छा स्कूल होगा उनके आसपास के मकानों की कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, बिकॉज द रूल इज नेबरहुड स्कूल। इंडिया में 1968 में
नेबरहुड स्कूल की बात आई थी, कोठारी कमीशन ने कही थी, इन प्रैक्टिस वी हैव नेवर इंप्लीमेंटेड इट। ये भारतीय समाज के साथ हमारे प्रशासकों ने धोखेबाजी की है, मैं धोखेबाजी का शब्द करूंगा। इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, वी हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट ए सिंगल ऑर्डर कि सरकारी स्कूल में सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते अपने बच्चे को? बट वी आर हिपोक्रेट्स। सरकारी नौकरी तो सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चा प्राइवेट में भेजेंगे। खैर ये अलग वो है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नाउ आई कम टू बेसिकली द स्कूल सिस्टम। अरे भूटान और फिनलैंड की बात तो रही गई, मैं आता हूं उससे पहले मैं भूटान की बात बता देता हूं, फिर फिनलैंड की बताऊंगा और फिर अमेरिका की बताऊंगा। मुझे वही डर है कि इट इज गेटिंग टू 11:27, हार्डली 18 minutes आर लेफ्ट। आई हैव टू गिव मोर टाइम फॉर डिस्कशन। फ्रेंड्स, भूटान 3 चीजें फ्री हैं। सारी उम्र शिक्षा, एजुकेशन थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम केजी टू पीजी इज फ्री, कंप्लीटली फ्री, नो हिडन फीस। Health, all health, whatever you have problem, you will not have to pay single money. Everything free. It will be paid by the government hospital. Everything. एक भी पैसा नहीं लगेगा, पर्ची का भी पैसा नहीं लगेगा. And third, land is free. Suppose I say and write an application to the collector, सर मेरी बेटी की शादी हुई है, मेरी जमीन बिक गई, अब मेरे पास जमीन नहीं है, मुझे खेती करने के लिए जमीन चाहिए. एक्चुअली मेरा ड्राइवर जो 5 दिन मेरे साथ रहा था, वो ड्राइवर बार बार इंडिया के बारे में सटार करता था और बड़ा गलत बात कहता था. गलत मतलब सही तो कहता था, बड़ा व्यंग करता था. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे आपके इंडिया में होता है. हमारे यहाँ रिश्वत नहीं चलती. ये बात सच है. 1 महीने के अंदर कलेक्टर से आंसर आ जाएगा और आपको जमीन 1 एकड़ जमीन दे दी जाएगी विद इन 1 मंथ. मैंने 5 साल पहले अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का निवासी हूं. आई हैड रिटन ए लेटर टू द कलेक्टर 5 years बैक. आई हैड पर्सनली मेट हिम. सो फार आई हैव नॉट रिसीव्ड द आंसर. तो 1 महीने में आंसर ही नहीं, जमीन मिल गई. और मान लो मैं कहूं कि जी मेरी बेटी वहां 20 जिले और आगे दूर रहती है, तो 15 more days and you will be allotted land there. Such a wonderful system. आपने पहली क्लास में दाखला लिया और पहली क्लास में दाखला लेने के बाद आपको कोई फीस नहीं, एक सिंपल वो दे दी जाएगी एडमिशन लेटर या वही रसीद कह दो या जो मर्जी, एंड दैट विल कंटिन्यू अप टू पीजी. आफ्टर पीजी यू हैव टू पे. पीएचडी में फीस लगती है. एक और जो मैं अपने ड्राइवर के घर भी गया, उसके यहाँ हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था. एक और उसने नई बात बताई, 2-3 बात बताई. बंगाल की 70% इलेक्ट्रिसिटी is supplied by Bhutan alone. 70% of the electricity of Bengal is provided by Bhutan. They get a good amount. गरीब जरूर है पर इतने नहीं है. One more interesting fact. Every Bhutani, by and large, 80-90% people have got 3 things in their house. मुर्गी रखते हैं, बकरी रखते हैं और गाय रखते हैं. मुर्गी से अंडी मिल गई, बकरी से दूध और मांस मिल गया, गाय से वो गाय का भी मांस खाते हैं, गाय से दूध भी और मांस भी मिल गया. By simple 3 things, मुर्गी, बकरी, गाय and बिजली, they are able to run their country well. They are having happiness index of the second highest 2012. गूगल में डालिएगा मिल जाएगा. And they were the first country in the world. China was the first country जिसने एक समय पर 1970 के आसपास ग्रॉस कैलोरी कंजम्पशन, ग्रॉस कैलोरी पर पर्सन कैलोरी कंजम्पशन, उनका कि ये इंडेक्स होना चाहिए किसी कंट्री के डेवलपमेंट का. भूटान ने अभी लास्ट में कहा है 10 साल पहले, मुश्किल से 7 साल पहले, 10 साल पहले, कि नो, इट शुड बी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनएच की कॉन्सेप्ट.
उन्होंने लागू की है अपने यहाँ। यस, आपने किसी ने कहा नॉर्वे में ये सब फ्री है। यस, दैट इज ट्रू। नॉर्वे और फिनलैंड और यहाँ तो बहुत कुछ और भी फ्री है, लेकिन भूटान जैसे गरीब देश की मैं बात कर रहा हूँ जनाब। हमारे इंडिया में भी अब देखिए, हम लोगों ने इसमें डाटा में गड़बड़ी होगी और इसमें बेईमानी भी होगी, इसमें कोई शक नहीं, बट इट इज ए ग्रेट थिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रेन्स टू 80 करोड़ ऑफ इंडियंस। फ्री ग्रेन्स, आज भी फ्री ग्रेन दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट ओनली। एजुकेशन फ्री है, बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन काफी कुछ फ्री है। खैर, मैं अभी और आगे दूसरी बातों पे आना चाहूंगा। फिनलैंड, लेट अस टॉक। फिनलैंड छोटा सा कंट्री है, जैसे मैंने बताया। गूगल में यदि आप डालें व्हाई फिनलैंड एजुकेशन इज द बेस्ट, दसियों वीडियोज आ जाते हैं, इंटरव्यूज आ जाते हैं, रीजंस आ जाते हैं। जॉयफुल लर्निंग की यदि बात की जाती है दुनिया में, तो फिनलैंड की बात की जाती है। एक और खास बात है, 70% of the economy of Finland is based on educational tourism. सारी दुनिया से, पांचों छह कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं वहां, और वहां ये देखते हैं कि फिनलैंड की एजुकेशन में ऐसा क्या है जो हम अपने यहाँ कॉपी कर सकें। एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, वहां पहला पब्लिक एग्जामिनेशन 15 साल की 16 साल की उम्र में होता है। फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन इज एट द एज ऑफ 16। हमारे यहाँ 8वीं से ही परीक्षा का डर बता देते हैं पेरेंट्स, और वो बच्चा कहता, ओ आई एम रियली हैप्पी, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम हैविंग माय एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। आनंदित लेकर बता रहा है, वो खुश होकर बता रहा है। और हमारे यहाँ हम रो के बताते हैं। हमारे इंडियन पेरेंट्स की मतलब वो रहती है, मेरे घर में मेरी ग्रैंड डॉटर है, आज ही उसको मेरी बहू डांट रही थी कि तू गणित नहीं कर रही, गणित नहीं कर रही, गणित नहीं कर रही। मैंने उनका कहा चूल्हे में झालो गणित को, आनंद करने दो बच्चे को। स्कूल में जो गणित नहीं है उससे 6 गुना एक अलग प्राइवेट कोचिंग की पढ़ाते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स आर वेरी एम्बिशियस अबाउट देयर चिल्ड्रन। कुछ होते हैं हमसे भी आगे निकले बच्चे। खैर, ये एक अलग इशू है, मैं और बात बताता हूँ। आई एम फिनलैंड की बात कर रहा हूँ। फिनलैंड में पब्लिक एग्जामिनेशन 16 साल की उम्र में है। इट डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन राइटिंग। चौथी पांचवी छठी क्लास से बच्चा लिखने लगता है, माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, और इस तरह की वो 50 एक्सरसाइज लिख लिख के करता है। और देयरफॉर ये कहता है एग्जाम होगा, उसमें क्या बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो फिनलैंड में ऐसा कोई बात ही नहीं है कि कोई नकल मारेगा या हमें इन्विजिलेशन करना पड़ेगा। यहाँ नेशनल एथिक्स की बात आती है, एक बड़ा इश्यू है, मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा। यहां मैंने देखा है, यहां दसियों बार देखा है, सौयों बार देखा है, 100 में से शायद बल्कि 1000 में से 2 बार हुआ होगा कि रेड लाइट है और कोई क्रॉस कर रहा है। नहीं करता कोई, मैंने तो देखा ही नहीं। 1000 में एक बार भी नहीं देखा कि रेड लाइट पर क्रॉस कर रहा है। नोबडी। वी ऑनर द रूल्स। और हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग अक्सर चक्कर में रहते हैं कि रूल कैसे तोड़े। सो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द कल्चर। वो उनके स्कूल में, इन कल्चर में सब जगह रिफ्लेक्ट होती है। फिनलैंड में द जॉय ऑफ लर्निंग वहां का की पॉइंट है। एक्टिविटीज कराते हैं बच्चे को, बच्चा रोजाना खेलता है, खुश होता है, और खेल खेल में ही लिखना पढ़ना बोलना सीख जाता है। खैर, अब मैं जल्दी से अमेरिकन स्कूल एजुकेशन पर आता हूं क्विकली। पढ़ाता था, 2 साल मैंने पढ़ाया, वहां दूसरों के बच्चे बिगाड़े। There was a hot discussion for 3 hours in the Department of Education, Delhi University. One of my teachers said, it is 85% cognitive domain, 10% cognitive or psychomotor domain, and 5% affective domain.
Another teacher of mine said, no, it is 85% affective, 10% cognitive, and 5% cognitive. मतलब हम अपने जीवन में शिक्षा में ज्ञान पर ज्यादा जोर दें या क्रियाओं पर ज्यादा जोर दें या भावनाओं पर ज्यादा जोर दें। हमारे जो टीचर बिल्कुल अलग पोजीशन ले रहे थे, उनका कहना है कि यदि भावनाएं ठीक हैं तो क्रिया और ज्ञान अपने आप ठीक हो जाएगा। और हमने भारत में पिछले 100-200 साल में जाकर देख लिया है कि ज्ञान ठीक होने का मतलब नहीं कि व्यक्ति चरित्रवान होगा। ए पर्सन मे बी हैविंग 10 डिग्रीज बट ही मे बी एथिकली रॉन्ग। ए पर्सन, मेरा अपना मित्र था, बीएससी फर्स्ट क्लास था, उसको क्या कहते हैं, बल्ब लगाना नहीं आता था सॉकेट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फर्स्ट क्लास था। सो कॉग्निटिव इज ए गेट्स लास्ट सीट, फर्स्ट सीट इंडियन थॉट में या उन सज्जन के अनुसार, मेरे गुरुजी के अनुसार अफेक्टिव डोमेन था। अमेरिका में कोनेटिव डोमेन पर है। कोनेटिव मींस एक्शन, साइकोमोटर एक्टिविटीज। बच्चे को एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कराई जाती है, गेम्स कराए जाते हैं, खेल खिलाए जाते हैं। मेरा ग्रैंडसन है, 4 साल का है, 4.5 साल, कुछ नहीं कराते, लेकिन 6 घंटे 8 घंटे बिजी रखते हैं। क्या करते हैं? कहते पानी से खेलो, आज मिट्टी से खेलो, पानी से खेलो, मिट्टी से खेलो, धूप में से खेलो। एक वो स्लाइम होता है, बड़ा स्लाइम सा इंडिया में भी आने लग गया है अब, वो बड़ा वो होता है जेली टाइप की, जेली से खेलो। शुरू के 2-4 दिन में मैंने देखा हमारा बच्चा आया और उन्होंने क्या किया, बच्चे वो क्या करते हैं, क्लास में रंग घोले, नीला रंग लिया और उस पर पैर लगाए और कागज पे पैर चिपका दिए कि आपके बेटे के पैर के दोनों निशान है। सारी क्लास में ये एक्टिविटी 1.5 घंटे तक की, 2 घंटे तक। अगले दिन या 2-4-6 दिन बाद या अगले हफ्ते फिर रंग घोला, अब हाथ के निशान करा दिए। मैं हैरान रहा कि मेरी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन, उनके बाल भांति भांति से बन के आते थे। टीचर यही काम कर लेती थी, सबके बाल बनाएंगी आज, बारी बारी से सबके बाल बना रही है टीचर, बाल चोटी गूंथना। इंडिया में तो कोई छुएगा नहीं हमारे बच्चे को। यही काम है, चिल्ड्रन विल एंजॉय। तो जो एंजॉय करना यहाँ खास बात है। एक्टिविटीज करते हैं, गेम्स करते हैं, खेलते हैं। क्या चीज दे देंगे कि कागज काटो, खुद ही कह देंगे गोल काटो, तिकोना काटो, चौखाना काटो, और कह देंगे कि दिस इज ट्राइंगल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज नॉट स्क्वायर बट रेक्टेंगल, इट लुक्स लाइक स्क्वायर, डू यू नो व्हाट इज स्क्वायर, दिस इज, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन देम। वो अपने आप बताएगा, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल और स्क्वायर की अपने आप बताएगा। when 4 sides are equal, it is square, and when 2 opposite sides are equal, it's a rectangular। अपने आप बताएगा, क्योंकि कागज से कटवा के सिखा रहे हैं, पानी से, मिट्टी से, स्लाइम से खिलवा रहे हैं बच्चे को। और हर बच्चे को पहले एबीसीडी नहीं सिखाते। मेरी ग्रैंडसन का नाम विहान है, तो कहते हैं वी लिखो, दिस इज योर नेम विहान, वी, दिस इज वी, योर नेम स्टार्ट्स विद वी। बच्चा, मेरा लड़का और कुछ ना पहचाने, सारी दुनिया में वी पहचान लेता है, VIHAAN लिख लेता है। लिखना नहीं जानता, लिखेगा नहीं, लेकिन विहान लिख लेगा। मेरी ग्रैंडडॉटर इवा लिख लेती है, और नहीं पढ़ पाती, कुछ नहीं पढ़ पाती थी। बेटा भी, मेरा ग्रैंडसन भी कुछ नहीं पढ़ पाता, लेकिन विहान लिख लेगा, और इवा लिखा है वो पहचान लेगा, दिस इज इवा। क्या है? ये ई है, ये वी है, ये ए है। वी कौन सा है? विहान वाला वी है। इट्स ए पर्सनलाइज्ड टीचिंग। एक और चीज है, माय ग्रैंडसन is almost mad about cars. So every Friday they have a session, show and tell। ऐसे 50 सेशन रखते हैं, शो एंड टेल। वो कार ले जाता है, कार दिखाएगा, और कार के बारे में 10 मिनट 15 मिनट बात करेगा। लोग सवाल पूछेंगे, वो बात करेगा, टीचर बात करेगी।
कोई बच्चा रुमाल ले आएगा, कोई बच्चा खाने की चीज ले आएगा, कोई बच्चा कुछ चीज ले आएगा, कोई बच्चा कपड़ा ले आएगा, कहते शो एंड टेल। हमारे इंडियन एजुकेशन में कभी हम सोच भी नहीं सकते ये पढ़ाएंगे। बड़ी नई तरह की चीजें हैं। इस तरह की सौयों एक्टिविटीज कराई जाती है, मुझ पर गिनती नहीं है, मतलब सौयों एक्टिविटीज। प्ले विद कलर्स, प्ले विद वुड्स, पेंसिल, रबर, कलम, इन सब चीजों से खेलो, और कुछ नहीं। एक दिन मुंह ही रंग दिया उनका, रंगा हुआ बच्चा आया, कहती क्या क्या आज मैं बंदर बनाऊं, मैं बिल्ली बनाऊं, मैं शेर बनाऊं। हमारे ग्रैंडसन को शेर बना के भेजा था एक दिन। नो, आई एम नॉट हैप्पी विद ए लायन, मैं बिल्ली बनना चाहूंगा, कल मैं बिल्ली बन के आऊंगा। ओके, यही काम चलेगा 4-6 दिन। प्ले विद कलर्स, प्ले विद पेपर। ये एक नई, एक और चीज नई जो होती है, टीचर का पर्सनल अटैचमेंट बहुत रहता है, हर बच्चे को नाम से जानते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय बहुत कम हो रहा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि ये तो मेरा देखा बाला है, रोज रह रहा हूं। पुलिस इज देयर फर्स्ट फ्रेंड। हर पुलिस ऑफिसर से लेकर सिपाही तक को ऑर्डर है कि महीने में कम से कम तू 4 स्कूलों में जाएगा, और उनके पास अपना बैज है, टॉफी है, बिस्किट है, चॉकलेट है, 50 चीजें बांट के आएगा तू स्कूल में, और उनसे डिस्कस करना। उन्हें कहना है इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ कॉल 911, वी आर देयर टू हेल्प यू। वो कहते हैं आपके माता पिता, आपका टीचर, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके सड़क पर कोई भी आपको कुछ तंग कर रहा है, यू कॉल 911, वी आर देयर टू हेल्प यू। सच ए रेयर थिंग। जैसे पुलिस इज आवर फर्स्ट फ्रेंड। हम इंडिया में देखते पुलिस को डरते हैं। मेरा ग्रैंडसन है, वही 4.5 साल का, वो उतर गया, रास्ते में देखा, हम डैडी देयर इज ए पुलिस फ्रेंड, माय फ्रेंड पुलिसमैन। वो गया, हेलो हाउ आर यू, कॉन्फिडेंस। 4.5 साल लंबे का गधे बुद्धू बने हुए खड़े हैं किनारे में। हेलो हाउ आर यू, आई एम विहान। ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप कराता है स्कूल, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग्स, जो इंडियन एजुकेशन में आज भी आनी बाकी है। आत्मनिर्भरता आनी बाकी है, हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखना चाहिए। मैं क्विकली जल्दी से चलता हूं। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, सेल्फ लर्निंग रहता है, टीचर इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाती है, और स्कूल एजुकेशन 10वीं क्लास तक को मान लिया जाता है कंप्लीट एजुकेशन, 12वीं क्लास तक को मान लिया जाता है कंप्लीट एजुकेशन है, बस आपकी हो गई। बहुत स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट है टीचर का, ऐसा नहीं है कि, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कई 100 स्टूडेंट को आगरा यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट के आदेश पर दाखिला करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फेक एडमिशन लिया था। उनका डिग्री फिर वही झगड़ा कर आगे मिल गई। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं दी, कुछ नहीं किया, एग्जाम दिया, पास फेल जो सब हुए, एंड दे आर क्लेमेंट फॉर द टीचरशिप नाउ। यहाँ बहुत टफ एग्जामिनेशन है। बीएड 4 साल का है, उसके बाद भी आपने पास कर लिया, नौकरी मिले जरूरी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आपका फिर एग्जाम लेगा, टीचर एसोसिएशन एग्जामिनेशन लेगी, आपके 1-1, 2-2, 4-4 इंटरव्यू होंगे, देन ओनली यू मे बी अपॉइंटेड एज ए टीचर। हायर एजुकेशन की मैं 2-3 बातें और जरूर कहना चाहूंगा, 3 मिनट और मुश्किल से लूंगा। सेमेस्टर बेस्ड होता है, क्रेडिट बेस्ड कोर्स होते हैं। आप गूगल में पढ़िएगा क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज क्या होते हैं। मैं सिर्फ एक चीज के बता दूं, ग्रेजुएशन में वहां बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं होता इन सारे कंट्रीज में, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप वगैरह में। दे कॉल इट बैचलर डिग्री, बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री का मतलब है आप संस्कृत ले लो, फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, चलेगा। यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट। हमारे इंडिया में आज भी सपना है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यू कैन टेक। फिर वो कहते हैं कि एक क्रेडिट का मतलब है एक पेपर हफ्ते में 1 घंटे पढ़ाया जाए, तो 16 घंटे तक 1 आवर टीचिंग फॉर 16 वीक्स प्लस 2 वीक फॉर एग्जामिनेशन एटसेट्रा, 18 वीक विज 1 क्रेडिट। So 4 hours per week for 16 weeks would make 4 credit.
and one semester, one paper consists of, say, maximum 22 credits, and 4 credit examination, 26, 24, 26 credit. This is the procedure. 4 year ग्रेजुएशन है. पीजी में ब्रिटेन ने एक नया प्रयोग किया है. द होल वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू फॉलो पीजी. जैसे 1 साल का पीजी, 12 महीने का पीजी, उसमें रिसर्च डिग्री और सब कुछ जोड़ देते हैं. बट दिस इज, इट्स अ वेरी हैवी कोर्स. फीस भी बहुत ज्यादा होती है. कई बार यहाँ अमेरिका में आप एक पेपर की जगह टर्म पेपर ले सकते हैं. यू कैन टेक अ फुल टर्म पेपर. टर्म पेपर मींस उसको पेपर में आपको सवाल नहीं होगा, आप 100 पेज की थीसिस लिख दीजिए उस पेपर पे, आपको मान लिया जाएगा एंड यू विल बी मार्क्ड ऑन दैट. मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 3 एग्जाम्पल लेना चाहूंगा. हालांकि मेरे दोस्त प्रोफेसर स्वर्डलॉफ के साथ मैं स्कूल गया, 10 स्कूल गए, वहां क्या अनुभव रहे वो सब अलग बातें हैं, मैं बात तो नहीं करूंगा अभी. विटगेन्स्टीन फिलोसफी में दुनिया में, विटगेन्स्टीन के बिना फिलोसफी की पढ़ाई नहीं की जा सकती दुनिया में. एक समय पर विटगेन्स्टीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए गए. मूर साहब उनके पीएचडी एग्जामिनर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. मूर साहब ने फिर उनकी पीएचडी रिपोर्ट में लिखा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द होल ऑफ द थीसिस ऑफ दिस जेंटलमैन, but whatever little I could understand is sufficient enough to award the degree of Doctor of Philosophy of the Oxford University. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पीएचडी दे दो, चलेगा. मैं पूरी समझ ही नहीं पाया, बड़ी थोड़ी सी समझ पाया, जितना समझ पाया काफी है, इनको पीएचडी दे दो. उसके बाद मूर साहब लिखते हैं कि क्या आप इनके गाइड को, कि क्या आप इन्हें मेरी यूनिवर्सिटी भेजेंगे, मैं अपने यहाँ इन्हें टीचर रखना चाहता हूँ. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग गया. ही वॉज ए टॉप थिंकर. एक समय पर उसने कहा कि आई हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, अब मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, देयरफॉर आई वांट टू गो. और वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आकर ही स्टार्टेड टीचिंग प्राइमरी किड्स. देखिए आनंद, देखिए यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग टू, नौकरी छोड़ छाड़ के कहता है मैं अब अपना मन का काम करूंगा और मेरा मन का काम है प्राइमरी बच्चों का पढ़ाना. वहां जब वो 5 साल पढ़ाया, उसको लगा कि मैंने तो गड़बड़ कर दिया, मेरी थ्योरी गलत थी, बच्चे हर छोटी छोटी चीज का गेम बना लेते हैं. उसके बाद इसी बीच में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आई कि वी आर मिसिंग यू फॉर 5 years. आई होप यू आर ऑल्सो, यू मस्ट ऑल्सो बी मिसिंग अस. विल यू लाइक टू कम एंड ज्वाइन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. उसे मनमा की मुराद मिल गई, वो वापस आ गया, पढ़ाने लग गया, फिर थ्योरी ऑफ गेम बनाई उसने. ऐसा इंडिया में कभी नहीं हो पाता. एक और खास बात, रिचर्ड पी फेनमैन की एक किताब है, मैं अक्सर रेफरेंस दूंगा उसका, अक्सर दिया करता हूं. उनकी किताब है श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फेनमैन. अभी एक शूमाकर, नहीं उसकी श्रोडिंगर या क्या नाम भूल रहा हूं मैं, ओपनहीमर फिल्म आई थी इंडिया में. ओपनहीमर अमेरिकन नोबेल प्राइज से जुड़े थे, उनके असिस्टेंट थे ये फेनमैन. फेनमैन साहब अपनी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज में फिजिक्स के प्रो थे, मेंबर थे. वहां कोई मेरे स्टूडेंट, मेरे जैसे स्टूडेंट ने कहा कि आई हैव वर्कड फॉर 5 years ऑन माय पीएचडी टॉपिक एंड आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन डन, ऑल वर्क हैज बीन डन इन दिस एरिया एंड देयरफॉर आई मे बी अलाउड टू लीव द पीएचडी. मेरी पीएचडी में ज्यादातर सब काम हो चुका है, मेरे लिए कुछ करने को बाकी नहीं है, अब मुझे पीएचडी छोड़ने को अलाउ कर दो. लोगों ने कहा कि ठीक अलाउ कर दो. फेनमैन बोला ऐसे नहीं होगा, इसको इसी बात पे पीएचडी दे दो. कि वो कैसे, कहो कि ask him to give a detailed report. How do you say that every work has been done in this area? He gave a report, 100-150 पेज की रिपोर्ट दी, पीएचडी अवार्ड हो गई. इंडिया में आज तक ना हुआ, ना अभी होने की उम्मीद है, हो पाए बहुत अच्छी बात है. बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहा जा सकता है. प्रोफेसर फिलिप्स के साथ टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैं क्लास लेने गया था, वो और ही शानदार अनुभव था, गजब का अनुभव था. मैं 2 मिनट में और आप एक मिनट मुश्किल से लेना चाहूंगा. कुत्ता अपना साथ ले गए, कुत्ता किनारे में चुपचाप बैठा रहा, कोई खड़ा नहीं हुआ. 2 माएं अपने बच्चों को लाई थी, एक 6 महीने का बच्चा था और एक 3-4 साल का बच्चा था.
वो दोनों बीच बीच में बोलते रहे, एक बच्चा थोड़ी देर रोया भी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा सर मुश्किल से हमारी ट्रेडिशन ये है कि आधा घंटा लेक्चर दीजिए और आधा घंटा डिस्कशन करेंगे। मैंने आधा घंटा लेक्चर दिया सांख्य फिलोसफी पर, 15 मिनट उन्होंने बातचीत की, एंड देन देयर वाज ए ओपन डिस्कशन। दिस इज हाउ ए क्लास हैपेंस। I stop here deliberately. I am sorry, I have taken more time. There are 9 minutes, 10 minutes. You can ask questions. You are welcome. Audio on करें, आपका स्वागत है। दिवेश कुमार जी हैं, बोले सर। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, देवेश जी आप बोल रहे थे, सवाल बोले, एम आई ऑडिबल? यस सर। बोले सर, सवाल बोले। सर यस, यू आर वेलकम सर, बोलिए। So nowadays, what we can see among the students, सर so they are not at all serious about their future or about their career. So I want to ask, who is responsible for this, whether the teacher or the parents or the society? Who is having the major role? Well, that's a very ticklish question. I would simply say individual, if individual is 18 years or above, he himself is responsible for whatever actions in his life he is going to take, good or bad. Number one. Number two, for Indian education context, by and large, teacher can be held responsible to a great extent. The environment in the university is given by the teachers and the administrators and the planners. So if there is something wrong, it is the university system which should improve. देखिए बहुत सिंपल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी में क्वालिटेटिव अंतर है, और उस अंतर के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी दोनों जिम्मेदार हैं। ओके, हेलो। Yes, sir. यस सर। Some other sir. Next question, sir. सर जी बोलिए। सर मेरा एक व्यावहारिक प्रश्न ये है कि जैसे G20 समिट प्रभात जी बोले। जी सर, मेरा एक व्यावहारिक प्रश्न ये है कि जैसे G20 समिट इंडिया में हुई, आप इस समय अमेरिका में हैं, तो अमेरिकन मीडिया क्या कहती है इस समिट के बारे में? क्या दे पॉजिटिव रिस्पांस है या फिर कैसा सर? अच्छा सवाल है। देखिए अब विद ऑल ऑनेस्टी, सारा अमेरिका जिससे भी बात करते हैं हम, they are looking very positively to India today. They know that India is a country which cannot be brushed aside today. Okay, sir. They are kind of afraid that India will take a lead. India is going to take lead. I have talked to about 10 Americans. They are good friend of mine. I go to lunch and dinner with Americans here. Okay. They think very high of India now. अब वो स्नेक वाली बात खत्म हो गई। डॉक्टर नाहर जी, एक क्वेश्चन है, मैं भी पिछले 20 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया जाए? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कुछ हो नहीं पाता। ये नाहर जी मैं बड़ी साफ बात कहूंगा, बुरी लगेगी, मेरी क्लास में गलत हो रहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है।
यस सर, यस सर। नहीं, ये बात है। पूरा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ व्यापक तरीका होना चाहिए ना सर। देखिए सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपकी बात सच है, मैं आपसे सहमत हूँ, वो सही है आपकी बात, लेकिन काफी बड़ी संख्या तक डॉक्टर प्रदीप, एक टीचर हिमसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्लास में क्या इथॉस रखता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में क्या इथॉस है, मेरे अपने डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हेड रहा, डीन रहा, 8 साल तक हेड रहा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, जब मैं 30 मार का नहीं हूं, मैं खुदा का भाई नहीं हूं, जब मैं कमरे से निकलता था और मैं अपना 9 घंटे कम से कम 10 घंटे डिपार्टमेंट में देता था, मैं कमरे से निकलता था, मेरे देखते हुए कोई मजाल नहीं, कोई बड़े से बड़ा सीनियर ऑफिसर भी क्लास में ना जाए, टीचर भी नहीं। वो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इसके लिए व्यापक तौर पर कैसे कर सकते हैं आप? सर पहले मैं अपने आप को सुधारूं, अपने आप सुधर जाएगा, मेरी क्लास सुधर जाएगी। लोग कहेंगे टीचर हो तो नाहर साहब जैसा, नाहर साहब की जो पर्सनैलिटी है वो दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नाहर, डॉक्टर नाहर का एक मतलब कहते हैं ना, मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी, टीचर हो तो डॉक्टर नाहर जैसा, वो हमें खुद बदलना पड़ेगा। सिस्टम तो सही है, बात सही है आपकी, सिस्टम बदलना है बहुत इंपॉर्टेंट, पर नाहर जी भी यथासंभव करे तब बदलाव संभव है। जैसे सर हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि इस वाले में क्या करना होता है, अपना आपको ऑडियो चालू करके तुम अपना काम करना, दूसरा हम कहें सर हम कोई चीज फॉर्मल काम नहीं करते, हम करेंगे तो बढ़िया से, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस बात पे भी हमारे आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा कहा, प्रिंसिपल साहब को आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, रास्ता आसान नहीं है टीचर का इंडिया में। ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स में। जो सिस्टम में बैठे लोग चाहते ही नहीं है कि कुछ अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बैठ गए हैं सिस्टम में जो चाहते ही नहीं है कि चीजें अच्छे से ठीक चले। भैया आपकी बात सही है, इसी कारण मेरी पेंशन 2 साल रुकी है, लेकिन रुक नहीं पाई, अभी भी 5.5 लाख रुपया काट लिया है, हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं डरा नहीं हूँ, आई एम फाइटिंग, आई इंटेंड टू फाइट। सर आप भी सिस्टम से परेशान हैं। सर मैं भी फाइट करके ही आपका ये क्लास कर रहा हूँ, खुद जबरदस्त मेरी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और बताइए सर, समय होने गया है, एक सवाल और पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन सर मुझे पूछना था। जी बोले सर। जी बोले सर। जी सर बोल रहे हैं सर। इसमें जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया जिसमें कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में जो चिल्ड्रन की पोजीशंस हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें कि अमेरिकन में जैसे सर आपने बताया कि 18 इयर्स तक वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फिर उसके बाद से वो लेफ्ट आउट कर लेते हैं या उनको करना पड़ता है, और हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो क्या ये हम अगर देखें कि, और दूसरी चीज आपने कही सर कि जो इंडियन चाइल्ड है वो अमेरिका में अमेरिकन चाइल्ड से बेटर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच, जी दोनों के बीच में ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो यह फैक्टर डाल रहा है सर? बड़ा गहरा सवाल है सर, आसान नहीं है। देखिए बार बार कहूंगा कि हमें 100% अमेरिकन सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन आज 100% इंडियन भी नहीं चाहिए, बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। यस सर। मैं नाम नहीं लूंगा, यूपी की बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से दिल्ली में अखबार में देखा था, स्टूडेंट ऑफ मेरठ यूनिवर्सिटी नीड नॉट अप्लाई, ये मैंने अपनी आंखों से ऐड देखा था आज से 40-50 साल पहले। वो स्थिति कमोवेश आज भी कभी यूनिवर्सिटी की है, तो दोनों ओर से काम करने की जरूरत है। इंडियन कल्चर में आमूलचूल परिवर्तन की नहीं, देखिए हम एक रात में नहीं बदल सकते, लेकिन इस समय जो प्रयास किए जा रहे हैं, बड़े अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, और मैं फिर प्रेज करूंगा, बहुत दिनों बाद यूजीसी प्रोएक्टिव रोल में आई है, अदरवाइज यूजीसी बड़ा गड़बड़ रोल में थी। मैं आई एम होपफुल, और लेकिन मुझे लगता है कि हालत बहुत खराब है, इसके बावजूद आई एम रियली होपफुल दैट समथिंग बेटर विल कम अप। सर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मेरा भतीजा है सर, अभी 10 साल का है, 4 क्लास 4 में पढ़ता है। मैंने उसे सहारनपुर से उसको बनारस के लिए ट्रेन पे, मतलब यहाँ से बैठा दे, वो आराम से सीट खोज के चला गया, वो रोटी बना लेता है, सब्जी बना लेता है, चाय बना लेता है, टोस्ट बना लेता है, पढ़ भी लेता है, हर कीर्तन भी कर लेता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों को आपको पेरेंट्सिंग जो वो है, जो अभिभावक का जो एक बड़ा रोल होता है उसको निभाना पड़ेगा।
वो जी चीजें बिल्कुल ठीक करे, आई एम विद यू, आप सही करे, मैं सर, सहमत हूँ। सर क्या आपके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं सर? यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे सर क्या आपके वीडियोस? भैया नहीं है, मैं अभी तक नहीं है, पर अब कोशिश कर रहा हूँ कि करूंगा, अगले कुछ दिनों में डालूंगा, डालना शुरू करूंगा, मे बी इन ए सर, मंथ और टू। बिल्कुल सर, आप सर, करिए, आप ब्लैंक आप करिए सर, आप सर, जैसे क्वेश्चन है आपसे। वीडियो डालो सर, आप जैसे देखिए विद्वानों को मैडम जरूरत कोई है। सवाल पूछना चाह रही थी, हम अच्छी बातें तो कर लेंगे। सर, 5 उनको हमने- यहाँ आचार्य में से कोई एक का नाम बताइए। भैया आपका यहाँ डॉक्टर लिखा आ रहा था, आगे कुछ नहीं था, कोई पूछना चाहे लास्ट सवाल और पूछ ले, मेरी शुभकामनाएं। बोलिए मैडम। सर मुझे ये जानना है कि अगर बच्चा क्रिएटिव है, जी क्रिएटिव काफी है लेकिन वो पढ़ने और लिखना नहीं चाह रहा, बहुत क्रिएटिव है सर, कुछ नया बना सकता है लेकिन लिखना नहीं चाह रहा है, तो क्या ये चिंता का विषय है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अपने आप लिख लेगा। एक आपको मैं किताबें सजेस्ट करूंगा, दुनिया भर की श्रेष्ठ किताबें हैं, 16 किताबें सारी हिंदी में हैं। गिजू भाई वधेका, गिजू भाई वधेका, आप पढ़िएगा, बहुत शानदार किताबें हैं। ओके सर, दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, माय बेस्ट विशेस, गुड लक, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन जी बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। सर, आप बुलंदशहर में सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आप बुलंदशहर में कहाँ के रहने वाले हैं सर? जहांगीराबाद के पास एक खनपुरा नामक गांव है, आपका स्वागत है। अच्छा, जहांगीराबाद के पास सर। सर आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा क्या मुझे? सर आपका कांटेक्ट नंबर आप अपने मजहर साहब से ले लीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।